having the examination, your half yearly examination, you have to show, you have to perform practical as well on the Amrita Online Labs itself. So for the practice purpose, it's better that you will show your screen in right now whenever I will give you the chance, so that during the examination you will not find any issues कि चल नहीं रहा और मेरा मुझे move नहीं करना आ रहा, cursor कैसे move करेंगे. Fine. So today I'm just telling you how to deal with it. You all have to download Amrita Online Lab, or you can just work on online itself. डाउनलोड नहीं करना तो मैं तो सीधा ऑनलाइन भी काम करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. ये मैंने स्क्रीन शेयर किया. इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन प्रेजेंट हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What's the topic written here? Anyone who can read out the practical topic? Vernier caliper. Okay, fine. Thank you so much. It's my vernier caliper. So my first experiment is to deal with the vernier caliper, and the aim of the experiment is if you just observe this objective written here. What is the second point in the objective? To measure the diameter of a small spherical or cylindrical object. Okay, say in your manuals now there are 3 different practicals written separately under the same topic, vernier caliper. To measure the diameter of a spherical cylindrical body, to measure the length of the height of the rectangular block, and the third one itself. Okay, so better the thing is that I will teach you one thing. The method will be same, and you have to practice the other 2, because in the examination I can ask you to show any of the 3. Is it fine or not? Yes, ma'am. Yes. Okay, so now what is vernier caliper? Anyone who just knows about it, who have done some in coachings, have you seen this instrument in your coaching? Discuss something about it or not? At least say yes or no directly, so that we can waste our time. No, ma'am. ठीक है, सब ठीक, कोई इशू नहीं. अब मेरी बात सुनो. See, this is my vernier caliper. Now vernier caliper or some imagine some screw gauges if you have not seen it. कभी देखा है ना, जब भी कोई भी ना जैसे कोई ऐसी मूवीज होती है जहाँ पर ना पता है तुमने मूवीज में देखा है ना, कि मैंने तो कोई मूवीज में देखा है, छोड़ो मूवीज. Imagine if I want to find out that which diameter of nut will be fitted in my car tire. जो कार को जब मैं अपना हुक से बड़े टाइट करते हैं अपने कार को, जब कार टायर को मैं अपने कार में अटैच करती हूँ, हम नट टाइट करते हैं ना बच्चा, करते हैं ना, नट टाइट करते हैं. सो वो अगर वो नट का डायमीटर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो क्या वो पूरा यूनिफॉर्म जो आपको स्टेबिलिटी कार को प्रोवाइड कर पाएगा? अगर नहीं, कभी नहीं कर पाएगा. It means that if I'm taking the case of my normal meter scale, the normal meter scale has least count how much? Who will tell me the normal meter scale that you have in your geometry box? What is the least count? 0.1 dash unit. 1 mm. 1 mm or 0.1 centimeter. Is it fine? Centimeter. है ना. Now imagine if my car diameter, that जो nut bolt है ना, उसका diameter जो मुझे चाहिए था, वो जो diameter वो imagine 1.244 करके कुछ ऐसा चाहिए. 1.244. It means now I want an instrument which is able to calculate after the decimal. कितने पॉइंट्स तक चाहिए मुझे आंसर? 3 डेसिमल पॉइंट्स तक चाहिए. पर जो मेरा मीटर स्केल था, is it allowing me to do so? Is it giving me to chance to do so? वो डेसिमल के बाद एक में ही खत्म हो जाएगा ना. 0.1 सेंटीमीटर है तो मैं 0.1 के बाद तो निकाल नहीं पाऊंगी, मतलब मैक्सिमम 1.1 निकाल पाऊंगी. लेकिन अगर मुझे 1.24 चाहिए, so this instrument, the main scale instrument, will not help me out. So are there any more precise instrument than my main scale instrument? Yes, they are. One of the more precise instrument is vernier caliper, and the next instrument is the screw gauge that you will do in your next practical class. That screw gauge is more preciser than this vernier caliper. So firstly we'll move step by step. Our first more precise instrument is this vernier caliper. The name vernier caliper is actually on the name of the inventor, वो जो जिसने ये vernier बनाया, ठीक है, ऊपर Pierre Vernier is its name. एक बार इसका नाम कहीं लिखा है क्या यहाँ पर? ये आर ब्राउन करके लिखा हुआ है, आपने मैनुअल में चेक करेगा, इसका वाइवा पास क्वेश्चन है उसमें लिखा होगा, ठीक है. उसके एक्चुअली ये नेम पे ही आया है उसके. नाउ हाउ टू वर्क विद इट? इज माय कर्सर मूविंग, इज क्लियर टू यू, विजिबल टू यू इफ आई एम मूविंग द कर्सर? Yes, ma'am. Yes, okay. ma'am. Now see, this is my main scale. It's simple as that. You have your main scale in your geometry box. It's simple a main scale. Now if you are seeing that there's one scale there's one scale here, this one which is बेटा देखो ये ऊपर और नीचे कुछ लाइंस नजर आ रही हैं मेन स्केल के ऊपर. ये जो स्क्रू, ये जो कोई
सिल्वरी टाइप का एक ना जॉइंट कर रखा है पोर्शन, उसमें ना ऊपर कुछ लाइंस नजर आ रही है Yes. Yes, ma'am. So this is known as vernier scale. The same upper one and the lower one, दोनों बेटा कुछ लाइंस हैं, इनकी कुछ रीडिंग्स नहीं है, सिर्फ सिंपल कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी है। ये जो स्केल है इसे कहते हैं वर्नियर स्केल। ये सेंटर वाला है जो मेरा, वो मेन स्केल है। बेटा ये जो ऊपर और नीचे वाली इसे कहते हैं जॉस। अब जॉस बेटा जैसे शेर का पंजा नहीं होता बेटा, वो अपने जो अपना प्रे होता है उसको होल्ड कर रखता है, पकड़ता है, जकड़ता है। So these are kind of jaws in which you can fix your object of which you need to find out your answer. Is it fine? पक्का? कुछ समझ आया मैंने क्या बोला? ये जॉज बेटा ये ओपन होते हैं, ये ओपन होने के कारण हम बीच में इनके अपने ऑब्जेक्ट रख लेंगे जिनकी मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैं दिखाऊंगी आपको भी हम कैसे काम करेंगे। Is it fine? समझ आया? ठीक है। Now first thing is that I know the main scale least count is 0.1 centimeter. So what is the least count of the vernier scale? What is the least count of the vernier scale? See, if it is visible to you, this whole situation is visible to you, least count is equal to 1 main scale division minus 1 vernier scale division. What's the formula of least count? 1 main scale division minus 1 vernier scale division. Now, if it is visible to you, just look at your that screen carefully. बेटा देखो यहाँ पर ये जो स्केल बना हुआ है 0, 1, 2 लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4 सब लिखा हुआ है ना, 5, 6 मेन स्केल में विजिबल है। बेटा एक बात अभी मुझे देखने दो, मुझे अगर उसमें विजिबल हो रहा है तो यहाँ पर ढंग से विजिबल नहीं है जो मुझे दिखाना है। लेट मी शो यू। यहाँ पर विजिबल है, देखो ये स्क्रीन विजिबल है या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। अब ये जो राइट हैंड कॉर्नर में आप देखो ध्यान से, राइट हैंड कॉर्नर में ध्यान से देखो बच्चा, इसमें ऊपर भी एक स्केल है और नीचे भी एक स्केल है ना? है बेटा। जो ऊपर वाला स्केल है वो मेरा मेन स्केल है। कौन सा स्केल है मेरा? वो मेन स्केल है। और बेटा जो नीचे वाला स्केल है इसका मैग्नीफाइड वर्जन दिखा रखा है आपको इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का। नीचे वाला स्केल आपका वर्नियर स्केल है। कौन सा स्केल है? वर्नियर स्केल। सिर्फ डिविजन दे रखी है नीचे, कुछ रीडिंग्स मार्क्ड है नीचे बेटा, देखो चेक करो, तो रीडिंग्स मार्क्ड है? No. नहीं। अब मुझे आप थोड़ा सा ना लॉजिक देख के बताओ कि आप इन दोनों स्केल में कोई डिफरेंस कर पा रहे हो? देखो दोनों स्केल में कोई डिफरेंस कर पा रहे हो? चेक करो, कुछ बहुत ही ऑब्वियस डिफरेंस है दोनों। आप सिर्फ ये वाला पोर्शन ऑब्जर्व करो। यस बेटा। Lines align नहीं है। अच्छा, लाइंस अलाइन नहीं है। और लास्ट वाला पोर्शन देखो, ऊपर बेटा ये मेन स्केल के 9 डिवीजन है ना? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऊपर मेन स्केल की 9 है। जरा काउंट करो ये वर्नियर के नीचे कितने हैं? 9 है, 10 है? काउंट करना। 10। मतलब इसमें क्या किया हुआ बच्चा? स्पेसिंग्स को, ये जो नीचे वाली स्केल की स्पेसिंग को रिड्यूस किया हुआ है, और रिड्यूस करके ऊपर जितने 9 का गैप था, जितना 0.9 सेंटीमीटर था, वहां पर ये 10 डिविजन्स को एडजस्ट किया गया है। यस और नो? Yes. मतलब can I say that, listen to me carefully, can I say that 9 main scale division is equal to 10 vernier scale division? Is it right or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Beta, this practical is very important for your entrance examination as well. This practical and the screw gauge examination, practical both are very very important for your examination, your entrance examination also. So please look at here what I am talking about. आपका ये आंसर्स कैसे हम लोग प्रैक्टिकल अपने एंट्रेंस पे डील करेंगे ये भी हम क्लियर करेंगे अभी। तो हमने इससे सीखा that my 9 MSD is equal to 10। हाँ जी Ma'am, but should we not count it from 0 to the 9th division? बेटा 0 to 0 है ना बेटा, 0 to 0 है। You should count from ना 1, 2, 3, 4। बेटा 0 to 0 है। मैम फिर वर्नियर स्केल में भी it should be 0। हाँ तो 0 ही मतलब बच्चा तो बिल्कुल अलाइन है। बेटा 0 है तो 0 तो काउंट कर रहा है। नीचे आप काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। चेक करो 10 ही है। Got it, ma'am. Okay. ठीक है, अब इतना तो क्लियर हो गया दैट ऊपर कितने डिविजन्स हैं? 9 है। नीचे कितने डिविजन्स हैं? 10 है। पक्का? Yes. अच्छा, when this circuit, see, being a physics student,
while doing any experiment, first thing you should check in an instrument is that is the instrument is having zero error or not. Zero error means they see there are two scales here, main scale and the vernier scale. Is the zero of both the scales are coinciding or not? Tell me. No, ma'am. No, they're not coinciding. Not properly. नहीं बेटा, they are coinciding. देखो exactly straight line मैम बन रहा है. जीरो तो है. बेटा 0 0 देखो जो पहला वाला है वो तो coincide कर ही रहा है, नहीं कर रहा. यस मैम. अच्छा कर रहा है ना, तो इट मीन देयर इज नो जीरो एरर. अगर इमेजिन करो, मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर देती हूँ. अब देखो ये मेन स्केल का जीरो यहाँ पर है और वर्नियर का जीरो यहाँ पर है. क्या अगर मुझे लेट्स सपोज बंदी जॉज में ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिलता तो क्या इसमें जीरो एरर नहीं होता? यस मैम. होता ना बेटा. जीरो पहले से शिफ्टेड है ओरिजिन से, लेकिन क्या ओरिजिनल सिचुएशन में जीरो शिफ्टेड है? नो मैम. So is there any zero error? Is there any zero error in the situation? No ma'am. No ma'am. My instrument is having zero error, nil. If you will find something in your observation part. What is zero error? You write down nil here. But it's not like that कि हर instrument में nil होगा. इसमें nil है. चलो अब start करते हैं. Least count निकालना. पहला काम हो गया zero error, nil. Second point is what is the least count of the instrument? So what's the formula of least count that we have discussed? What is the formula of the least count we have discussed? Number of 1 divisions. MST minus 1 VST. 1 MST minus 1 VST. Proud of you. VST means vernier scale division. MST means main scale divisions. Okay. So and one thing we know that 9 MST is equal to how much VST? 10. So 10. 1 VST is equal to how much MST? 10 upon 9. 10 upon 9 or 9 upon 10? 9 upon 10. 9 upon 10. It means 1. बेटा अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लिख लो, जो मैं बोल रही हूँ आपको क्लियर हो जाएगा. 9 MST is equal to 10 VST. So 1 VST is equal to 9 by 10 MST. Yes or not? Yes ma'am. मतलब 1 VSD is equal to 0.9 MSD. Am I right or not? Yes अच्छा ma'am. मुझे बताओ, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था 1 MSD minus 1 VSD. 1 MSD को मैंने एज इट इज छोड़ा और 1 VSD की वैल्यू क्या निकल के आई है MSD के रिलेशन में? 0.9. 0.9 MSD. तो जब मैं सबट्रैक्ट करूंगी तो कितना Ma'am, you are muted. Ma'am, you are muted. Ma'am, you are muted. मैं समझ गई मैं म्यूटेड हूँ. किसी में इतना दम था कि ओके शायद मैंने अटेंडी बनाया नहीं, तो एक मिनट रुको. तो किसी में इतनी डेयरिंग थी जिसने मुझे म्यूट किया. ओके शायद मैं अटेंडी बनाया नहीं मैंने. ठीक है, तो अब डेयरिंग है किसी के अंदर. लेट मी मेक एवरीवन अटेंडी. तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो जो ये बेवकूफ़ी कर रहा है वो ना करे. ठीक है, लेट्स प्रोसीड विद द प्रैक्टिकल. चलो, कि मैंने अपने आप को म्यूट नहीं किया. कोई तो है जो ऐसा बेवकूफ़ी वाली हरकतें करके खुश हो रहा है, इसे पता नहीं आज छोले भटूरे खाने को मिल जाएंगे ये सब करके. ठीक है बच्चा. नाउ माय वॉइस इज ऑडिबल एंड माय स्क्रीन इज विजिबल. Yes ma'am. चलो, सो अब मुझे बताओ लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 MST minus 0.9 MST. तो मुझे बताओ कितना MST बना बच के? व्हाट इज द डिफरेंस नाउ? 1 minus 0.9. 0.1 MST. ठीक है, 0.1 MST. और बेटा 1 MST की वैल्यू क्या है? हमारे नॉर्मल मेन स्केल रीडिंग की डिवीजन क्या होती है? एक मेन स्केल डिवीजन कितना देता है? एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या होती है? 0.1 सेंटीमीटर. यस और नो? यस और नो? सो मुझे बताओ लीस्ट काउंट कितना निकल के आया? जल्दी से बता दो लीस्ट काउंट कितना निकल के आया? 0.1 पहले से था. 0.1 VSD. 0.0 डिफरेंस करूंगी मैं, तो 0.1 MSD आया और 1 MSD की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है. तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या निकल के आया? 0.1 into 0.1 सेंटीमीटर. यस और नो? Yes, ma'am. मैम प्लीज रिपीट. कोई बात नहीं. लीस्ट काउंट आप कॉपी में लिखे हैं बेटा. लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.9 MSD आया. यस और नो? Yes ma'am. Yes ma'am. और Yes, 1 MSD किसके इक्विवेलेंट आया? 1 MSD किसके इक्विवेलेंट को पता है कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर. 0.1 सेंटीमीटर बेटा. तो इट मींस 0.1 MSD की वैल्यू क्या होगी? 0.1 into 0.1 सेंटीमीटर.
मैम 0.01 0.01 तो इट मींस अब ये मेरा जो लीस्ट काउंट है वो नॉर्मल स्केल से कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया। कम हो गया। तो जो मेरा एम था दैट कि मैं डेसिमल के बाद मोर नंबर से कैलकुलेट कर पाऊँ, क्या वो क्या वो अकम्प्लिश्ड हुआ मेरा टास्क? मेरी लीस्ट काउंट रिड्यूस हुई अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कैन आई फाइंड माय आंसर? इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, who will tell me what is the least count of the vernier caliper coming out to be? जल्दी से बता दो फटाफट से। 0.01 centimeter. Proud of you. 0.01 centimeter, which is written also 0.01. See, it's written here ना? It's written here 0.01 centimeter. Check करो, screen पे लिखा हुआ है. Now, let's start doing the experiment. I'm choosing an object which is, let's suppose what? Spherical. मैंने spherical bob लिया. अब मुझे spherical bob का diameter निकालना है. मैंने जब डायमीटर निकालने के लिए स्फेरिकल बॉब को चूज किया तो वो अपने आप से जॉस के बीच में आ गया। अब मुझे इसे ड्रैग करके इसको क्लोज कर देना है। मैंने क्लोज किया। इज माय स्टेप क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. Okay. So now everyone just if there is a table here and that you have to draw. There is a table here that you have to draw. तो टेबल नजर आ रहा है बच्चा? ये टेबल नजर आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. Okay. Firstly, we are dealing with the diameter of the bob. Fine. पहला बेटा सीरियल नंबर तो 1 लिख देंगे, चलो कोई बात नहीं। मेन स्केल रीडिंग निकालना है। बेटा दूसरी चीज क्या करनी है मुझे? वर्नियर स्केल रीडिंग निकालनी है। तीसरी चीज क्या करनी है? आप इस प्लीज इस टेबल को ना ऊपर से जो 4 बॉक्सेस इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में फटाफट से। कहीं भी जो आपने कॉपी ली है फिजिक्स की, आप फिजिक्स की मेन कॉपी में लिख लो जल्दी से, डोंट वेस्ट टाइम। क्या क्या लिखेंगे बेटा आप लोग? यू आर मेजरिंग द डायमीटर। मेन कॉपी में नहीं बेटा प्रैक्टिकल तो बेटा प्रैक्टिकल की रीडिंग तो अब मेन कॉपी में लिख लो ताकि बार बार वो हो जाती है ना बेटा कि उस समय क्या लिखेंगे जब हम फाइल बनाएंगे। तो अभी जो रीडिंग्स हैं ऊपर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ बॉब बाय वर्नियर कैलिपर, ये टॉपिक अपनी मेन कॉपी में लिख लो ताकि वो बार बार आपको मिसप्लेस ना हो। एट द टाइम ऑफ राइटिंग डाउन द एक्सपेरिमेंट इन द फाइल यू विल हैव समथिंग इन योर हैंड। तो वो हम ना पेज में रखते हैं, पेज खो जाते हैं। इज इट फाइन? फटाफट से सबने ऊपर की टेबल नोट की? Yes, जल्दी से टेबल नोट की। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। जल्दी से टेबल नोट करो। Done, ma'am. डन। और बेटा एक और चीज, टेबल में करेक्शन टेबल में से रॉन्ग है। ये जो MSR ठीक है बेटा, ये जो VSR लिखा है ना बेटा, ये VSR नहीं होगा, ये VSD होगा। क्या होना चाहिए? ये VSD. VSD। और बेटा यहाँ पर भी क्या होगा? ये थर्ड में VSD इंटू लीस्ट काउंट क्या होगा? VSD into least. मैं आपको बताऊंगी इसका दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर ये रीडिंग ये टेबल नोट करे तो मैं अपने मेन पेज पे जाती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी हम फिर हम मेन स्केल रीडिंग को हम मेन स्केल डिवीजन क्यों नहीं बोल रहे हैं? बेटा क्योंकि मुझे उसकी रीडिंग पता है ना। जिसकी रीडिंग पता है मैं उसको रीडिंग बोलूंगी, जिसकी रीडिंग पता ही नहीं उसको रीडिंग कैसे बोलूंगी? रीडिंग तो निकालेंगे ना बेटा लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब डिवीजन ही पता है ना वर्नियर की, तो नीचे वाले स्केल में कुछ वैल्यू तो दे नहीं रखी थी, है कि नहीं? यस समझिए ना क्या लॉजिक यूज किया हम लोगों ने। यस। ठीक है। सो अब मैं अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं अपने मेन पेज पे जाती हूँ जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। ये सिमुलेटर। सो दिस इज माय मेन स्केल। मैंने 0 एरर को नील ट्रीट किया, नील लिखा। नीचे आ रही हूँ। आई एम चूजिंग माय डायमीटर ऑफ द बॉब। ये फिक्स हुआ। आई एम क्लोजिंग माय जॉस। अच्छा पहला रीडिंग मुझे क्या लिखनी है? मेन स्केल रीडिंग, ठीक है ना बेटा? अब मुझे बताओ, देखो इनिशियली ये वाला नीचे वाला स्केल बेटा क्या था? नीचे वाला स्केल क्या था आपका? वर्नियर था या मेन था? वर्नियर। जिसकी मुझे रीडिंग नहीं पता इसलिए मैंने वहाँ VSD लिखवाया, लेकिन मुझे मेन स्केल की बेटा रीडिंग तो पता है ना, है कि नहीं? अच्छा ये जो वर्नियर का 0 था बेटा, ये पहले 0 पे कॉन्सेंट्रेट हो रखा था। इनिशियली ये पहले 0 मिले हुए थे, वर्नियर का 0 मेन का 0। जैसे आपने बॉब को इंसर्ट किया वर्नियर की 0 कहाँ पर आ गया? मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर पे। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आई? मेन स्केल कितना ओपन हुआ? 1 सेंटीमीटर। तो फटाफट से मेन स्केल रीडिंग की जगह लिखो 1 सेंटीमीटर। फटाफट से लिख लो 1 सेंटीमीटर। लिखा 1 सेंटीमीटर। जो मेन स्केल रीडिंग की जगह लिखा मेंस 1 सेंटीमीटर। Yes, ma'am. Yes, स्टॉप ma'am. प्रेजेंटिंग। अच्छा प्रेजेंटिंग स्टॉप हो गया क्या? नहीं Ma'am, but it's not coinciding.
हाँ बेटा वेट तो करो एक मिनट। हाँ जी बेटा बताइए। इट्स नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग ना बच्चा, यही बोल रहे ना बच्चा। लेकिन इतने एरर्स तो हमको बेटा इस एक्सपेरिमेंट में आएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा प्रिसाइज थोड़ा है। जैसे डेसिमल के बाद एक ही नंबर प्रिसाइज हो पाया है, तो ये इतना प्रिसाइज तो नहीं है, तो इट मींस इसमें भी एरर्स तो होंगे, तभी तो इससे ज़्यादा प्रिसाइज बनाया वो स्क्रू गेज है। समझ आया बच्चा या नहीं? Am I audible? अच्छा नाउ अब VST कैसे निकाला जाए? अब VST को कैसे निकाला जाए? अब बेटा VST की ये छोटी सी ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। अब मेरा एरो मूव करता नजर आ रहा है आपको? ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा बेटा देखो, फर्स्ट डिवीजन के दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं? क्या दोनों स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बना रहे हैं? एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है? नहीं। नो मैम। बेटा देखो सेकंड भी कोइंसाइड नहीं हो रहा। देखो सेकंड देखो यहाँ पर, ये इधर है, ये इधर है। थर्ड भी कोइंसाइड नहीं हो रहा। ऐसे कौन सी डिवीजन जो बेस्ट कोइंसाइड हो रही है? चेक करके बताओ। कोई तो है जो बेस्ट कोइंसाइड? नाइन्थ डिवीजन। Ninth division of Vernier scale is best coinciding with the main scale. मुझे ये 1.8 से coincide हो रहा है उससे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरा जो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से coincide हो रहा है, जो कौन सा डिवीजन निकल के आया। 0.9 सिर्फ 9 बेटा, 0.9 नहीं, 9 डिवीजन। बेटा मुझे तो उसकी रीडिंग अभी पता ही है ना, क्या मुझे नीचे नंबर लिखा हुआ है कोई? 9th डिवीजन। तो आपने VSD की जगह क्या लिखोगे बेटा? 9। अच्छा डिवीजन को रीडिंग कैसे बनाते हैं बेटा? डिवीजन को रीडिंग कैसे बनाते हैं? मल्टीप्लाइंग बाय लीस्ट काउंट। किसी भी डिवीजन को मुझे रीडिंग बनानी हो तो उसे बेटा कैसे बनाते हैं? मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो कितना VSR कितना आएगा? VSR मतलब VSD इंटू लीस्ट काउंट। जब आप VSD में लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा बच्चा? 0.09। 0.09। पक्का? श्योर? यस मैम। अच्छा मुझे बताओ लास्ट टेबल क्या है? लास्ट में क्या है जो मुझे करना है? इसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या है? टोटल रीडिंग। टोटल में क्या करेंगे? दोनों को ऐड करना है या नहीं करना है? देखो। यस मैम। तो बताओ दोनों को ऐड करके कितना आंसर आ रहा है? MSR प्लस VSR को ऐड करके कितना आंसर आ रहा है? 1.09। तो चेक करते हैं क्या हमारा 1.09 सेंटीमीटर आंसर है या नहीं है। वी कैन चेक इट ऑल्सो हियर। वेट, ये जो मैंने ये स्फेरिकल बॉब मैंने फिक्स किया, ये मैंने इसे अटैच किया। अब देखो आंसर वेरी कर गया। ठीक है, मैंने कुछ समझा दिया ना, मुझे आप आंसर बताएंगे फटाफट से? व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग? चलिए बताओ फटाफट से। व्हाट इज द आंसर? मेन स्केल रीडिंग। नहीं बेटा मैंने चेंज कर दिया, स्क्रीन देखो, मैंने स्क्रीन चेंज कर दिया। स्क्रीन देखो मैम 2.1। 2.1। नाउ व्हाट इज द वर्नियर स्केल रीडिंग? हम 0.2। सोच के बताओ। 0 या 1? मैम 1। 1। तो बताओ फाइनल आंसर कितना है? तो VSD हो गया 1। तो VSR कितना हुआ? जल्दी बताओ। VSR 0.1। 0.1 कंफ्यूजन। तो बताओ फाइनल आंसर कितना है? जल्दी से ऐड कर दो MSR VSR को। 2.01। 2.01 2.11। बेटा मेन स्केल क्या था? मेन स्केल क्या था? 2.1। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? फास्ट तो नहीं हो रहा? दोबारा रिपीट करूं? मैम हाउ VSR came to be 0.01? बेटा देखो VSD कितना आया, कौन सी डिवीजन बेस्ट कोइंसाइड कर रही है? ये वाली फर्स्ट वाली कर रही है ना बेटा। तो डिवीजन तो फर्स्ट है, और डिवीजन को रीडिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? मल्टीप्लाइंग बाय लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट बेटा कितना है? 0.01। तो जब मैं 1 को 0.01 से मल्टीप्लाई करूंगी तो VSR कितना आ जाएगा बेटा? 0.01। ओके। सो 0.01 को मैं 2.1 में ऐड करूंगी, कितना आंसर आएगा बेटा? 2.11। चेक करो कि मैं कोई गलती तो नहीं की। चेक करें। रॉन्ग। तुम्हारे क्या गलती करी? क्या या 2.10 देखें? अगर जो बच्चा बोल रहा था 2.10। मैंने 2.01 बोला था।
2.01 तो बेटा आंसर नहीं होगा बेटा। 2.01 कैसे होगा बेटा? देख मेंस की रीडिंग कितनी है बच्चा, मेंस की रीडिंग चेक कर कितनी है। 1 तो 2.1 के साथ में अगर मैं, अच्छा मैं आपकी रीडिंग लिख देती हूँ। मैम मुझे बताइए क्या गलती है मैम? वी शुड टेक द सेकंड वन बिकॉज दैट इज परफेक्टली कोइंसाइडिंग। परफेक्टली कोइंसाइडिंग सेकंड वन भी नहीं मैम हो रहा, 1 ईयर देखते हैं। स्केल का फर्स्ट Yes, सेकंड ही ma'am. हो रहा। एक मिनट, अपने हाथ में ही I'm तो है। ये I'm देखो ये second होना चाहिए। ये इनके अकॉर्डिंग बेटा बिल्कुल जीरो फर्स्ट है ना, फर्स्ट जीरो वाली वो बेस्ट कोइंसाइड हो रही है। शायद मैंने मुझे देखने में दिक्कत हुई। देखो यहाँ पर ये जो इनके अकॉर्डिंगली, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है नहीं नजर आ रही है? Yes, ma'am. है ना बेटा? ये जो इनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट कोइंसाइडिंग है वो जीरोथ वाली डिवीजन है। फर्स्ट वाली इनके अकॉर्डिंग टिल्टेड है हल्का सा। इनके अकॉर्डिंग जीरो वाली जो है वो बेस्ट कोइंसाइडिंग है। शायद स्क्रीन देखने में मेरे से प्रॉब्लम हुआ। एक और चेक करें, करना समझ आया नहीं समझ आया? करना समझ आया या नहीं आया? बताओ तो एटलीस्ट यस और नो कि करना कैसे है। मैम वीएसडी में हम मैम क्या लेंगे? वीएसडी में बेटा जो बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है नीचे वाला, ऊपर वीएसडी वर्नियर जो डिविजन्स हैं वो मेन स्केल से कौन सी बेस्ट कोइंसाइड कर रही है। अच्छा बताओ इनमें से कौन सा चूज करूं, क्या चूज करूं आप बताओ। मैम तो अगर हम वर्नियर स्केल पे लेंगे ना फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ जी बेटा, हाँ कौन सी वर्नियर डिवीजन वर्नियर स्केल पे ये शुरू होगा 0 1 2 3 कि नीचे से कौन सी बेस्ट कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, बताओ कौन सा चूज करूं। Ma'am, it's BS. आयरन ब्लॉक। Iron block. हम block. चलो आयरन ब्लॉक, ये आयरन ब्लॉक का लेंथ आ जाएगा है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ रीडिंग बताओ फटाफट से मेन स्केल। 2.3 या 2.2? मैम 2.2 2.2 पक्का 2.2 है? 2.2 दोनों 2.2. आपने दिमाग में रखना, ठीक है? फिर हम चेक भी करेंगे। अब मुझे बताओ 2.2 अगर एक ने डिसाइड किया 2.2, एक ने डिसाइड किया 2.3, 2.2 अगर डिसाइड किया हुआ है तो मुझे बताओ ये वर्नियर की डिवीजन कौन सी जो बेस्ट कोइंसाइड कर रही है, चेक करो। Ma'am 3. Ma'am, 8. तो 0 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 भी नहीं, एक ये 7 है और ये 8 है। इन दोनों में से कुछ होगा ना जो बेस्ट कोइंसाइडिंग होगी, है ना? अगर आपने कहा 8 है तो लेट्स सपोज 2.2 पहले से था और 8 वीएसडी आया। अब हम चेक कर रहे हैं, वो बता देगा सही है गलत। अगर आपने कहा 8 है तो मुझे बताओ आंसर फाइनल आंसर कितना होना चाहिए? 2.38. 2.38 या 2.28? 2.28. चलो जो 2.28 2.28. 2.28. चलो देखते हैं फिर इसमें I'm क्या देख लेते हैं। 2.2. Let's see. Wrong. तो अब क्या रख के देखूं? 2.3. 2.38। I'm 2.3. बेटा वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों 2.8 पॉसिबल नहीं है बेटा? बेटा 2.3 तो पहुंचा ही नहीं बेटा। 2.2 पूरा था, 3 तो बेटा पहुंचा ही नहीं ना। तो 3 तो कंप्लीट 2.27 होगा. चलो वेरी गुड, Ma'am, 2.27. वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स सी, वेरी गुड, आ गया? ठीक है, समझ आया नहीं आया? बेटा डिफिकल्ट मैम है इसमें क्या? स्टार्टिंग क्या वैल्यू ली? बेटा स्टार्ट बेटा 2.2 बेटा। देखिए एक बात बता, ध्यान सुन मेरी बच्चा, बात हमने, मुझे पता है ना बेटा, देखो लेट्स सपोज 2.2 और कभी 2.3 के बीच में कभी बहुत बार नहीं होता, हमारी रीडिंग 2.2 और 3 के बीच में आ रही होती है। तो हम लोग कहते हैं क्या ले, तो बचपन में उनको सिखाया गया था जिसके पास ज्यादा है वो ले लो। ऐसे नहीं कहते थे हम लोग बचपन में कि जिसके पास ज्यादा है वो ले लो, ऐसे कहते थे हम लोग, है ना? लेकिन बेटा ये इंस्ट्रूमेंट बनाया ही इसलिए गया है कि वो तुक्के ना मारे जाएं। 2.2 और 2.3 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज हैं, 2.22, 2.23, 2.24। ये तो सिर्फ 2.22 अलाउ कर रहा है, 2.23 अलाउ कर रहा है, लेकिन होता बेटा कोई और इंस्ट्रूमेंट 2.222 अलाउ करता। तो जब तक 2.3 पहुंचा ही नहीं है तो मैं 2.2 लूं कैसे? समझे आप मेरी बात? बेटा यहाँ पर देखो 2.3 से पहले ही इसकी डिवीजन खत्म हो रही है। देखो ये 2.2 पूरा है, 2.3 तो पहुंचा ही नहीं है, तो 2.3 आना चाहिए मेरे आंसर में। No, ma'am. बताइए
क्या ना समझ आया? मैम स्केल की बता रीडिंग 0 दीजिए। से स्टार्ट करनी है ना? हाँ 0 से करनी है कि 0 स्टार्ट करनी है, होता है 0 भी कभी कर रहा होता है। अब मैं ब्रेथ चेक करूं? अब बताएंगे फटाफट से आंसर? नहीं समझ आया? कंफ्यूजन हो Yes, रहा है क्या बेटा? मतलब नहीं समझ आया? मैम मुझे लगता है 2.29 होना चाहिए था बिकॉज वो 3 पे भी आ रहा था और उसमें 11 डिविजन्स दिख रही थी। नहीं नहीं, अभी से चले एक काम कर, सारी जो प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी। अब तेरे सामने है, अब मुझे बता आंसर। व्हाट इज द मीन स्केल रीडिंग? 1.5। हाँ 1.6 तो नहीं लूंगी ना मैं, हाँ कि नहीं? 1.5 के आगे कितना, 1.5 के आगे कितना है? वो तो मुझे वर्नियर का देने का काम, वर्नियर का देने का काम ही क्या है? वर्नियर का काम ही क्या है कि वो डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस की रीडिंग तो यही बताएगा ना वर्नियर। मैं 1.3 कैसे ले लूं? ये तो रॉन्ग हो जाएगा, एरर आएगा मेरे आंसर में। तो जो मुझे एग्जैक्टली पता है मेन स्केल से वो क्या है? 1.5। और 1.5 के बाद कितना है वो कौन देने वाला है? वर्नियर स्केल अब बताओ वर्नियर का कौन सा कॉन्साइड कर रहा है? देखो जीरो जीरो कॉन्साइड नहीं करना बेटा। 8 पक्का? श्योर? तो यहाँ लिख दो, क्या लिखना चाहिए आंसर मुझे बताइए? 1.68 या 58? अभी बताया मैंने। मैम 1.58। मैम 1.58 1.5 गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, ये तो गलत आ रहा है। फिर 8 नहीं है तो कौन सा है? चेक करो। 9 लगा 1.59 1.57। सब डाल के देख लो ना, अपने हाथ की बात है ना। 7 भी कर रहे मैम हैं। 1.59 है ना, अपने हाथ में है, लगाओ 1.57। देखो ये मैम देखो ये 5। गलत ले रहा है मैम, ये थोड़ा ज्यादा 80 हो रहा है उसके साथ। यस मैम 8 है मैम अलाइन। देखो बेटा वही तो, देखो मैं आपकी बात समझती हूँ, आपकी जो बातें हैं, आपके जो इश्यूज है समझती हूँ बेटा। ये क्या, ये मैं इसको चेंज कर सकती हूँ? मैं कहती हूँ अमृता ऑनलाइन लैब को जाके कि नहीं नहीं ठीक कर, नहीं कर सकती ना। अब इसने तो कह दिया 1.57 टिक है। मैं आपके इमोशन समझती हूँ, अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँ इसको तो मुझे 8 नजर आ रहा है बेस्ट कॉन्साइडिंग, साफ नजर आ रहा है कि 8 बेस्ट कॉन्साइड कर रहा है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन क्या मैं इसे कुछ बिगाड़ सकती हूँ? मैं ऐसा कुछ नहीं ना बेटा। तो शांति से ओके कहो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ पहले मुझे। इनकी पॉइंट 0.01 के डिफरेंस के लिए हम थोड़ा लड़ाई करेंगे बैठ के, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. When it is not exactly, when it was not exactly coinciding with 1 ma'am, then also we should take 0.9, but we took 1 centimeter in the first. अच्छा, तो अब आपको अभी पुराना वाला भी याद है कि पहले वाला भी रॉन्ग होना चाहिए था। बेटा देखो मेंस की रीडिंग तो सही दे रहा है, ये जो बेस्ट कॉन्साइडिंग की प्रॉब्लम कर रहा है ये मेंस की रीडिंग की तो सही दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस स्केल में तो जितने भी आपने आंसर चेक किए, मेंस स्केल में कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जो प्रॉब्लम आ रही है ना इसकी रीडिंग्स में, वो आ रही है इसकी वर्नियर में, वो इसकी अपनी खुद की प्रोग्रामिंग है, इसमें हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते इसका, ठीक है? चलो ऑनलाइन प्रैक्टिकल होगा तो मैं बेटा मैं भी तो यहीं पर होंगी ना, तुम भी तो यहीं पर होगे ना। मैं तुम बताना मैम, ये देखो इसकी पहले से फॉल्ट थी, मेरी फॉल्ट नहीं है, ठीक है? तो 1.5 1.57 1.58 तक का रेंज मैं देख सकती हूँ, लेकिन अगर 1.57 और तुम बोल रहे हो 2.78 तो क्या मैं कहूँगी नहीं 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 इसकी गलती है, ठीक है? मैम इसमें हम फर्स्ट मार्क इग्नोर करेंगे ना? कौन सा बेटा फर्स्ट मार्क? मैम जो बिल्कुल ही फर्स्ट है एकदम वर्नियर स्केल बेटा वो तो जीरो है बेटा, वो तो जीरो है ना, जीरो इग्नोर क्यों करूंगी? हो तो जीरो कॉन्साइड कर रहा, तो जीरो ले लेना। जीरो अगर जीरो पहला वाला ही कॉन्साइड कर रहा तो पहले वाला ले लेना, इग्नोर क्यों करेंगे? सब लेंगे ना, 0 1 2 3 4 10 तक सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है? ओके। सो आई होप दिस प्रैक्टिकल इज क्लियर टू यू और नॉट? वन मोर डाउट। ओके बेटा बोलो जल्दी मैम वर्नियर स्केल पे हम आपने बताया इट हैज 10 डिविजन्स, तो हम काउंट जब करेंगे अपने VSD में तो 0 से काउंट करेंगे। अगर 0 कॉन्साइड करेगा तो 0 लिखेंगे, 1 नहीं। बेटा 0 कॉन्साइड करेगा 0 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, ओके ठीक है? जो कॉन्साइड करेगा बोलेंगे 0 तो 0 1 तो 1, हो तो 10 कॉन्साइड कर रहा हो तो 10 तो 10 लेंगे। मैम फिर तो इसकी 11 डिविजन है। बेटा 11 नहीं है बेटा, वो 0 से स्टार्ट करके ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैम पर नंबर ऑफ डिविजन्स तो वही ना। बेटा नंबर से छोड़ो, नंबर को छोड़ो, तुम जब वैल्यू लेते हो लोगे तो नंबर लोगे या तुम डिवीजन लोगे? डिवीजन लेंगे ना बेटा। तो मैं कहूंगी ना 0th डिवीजन कॉन्साइड कर रही है, फर्स्ट कर रही है, थर्ड कर रही है, मुझे उससे मैटर करना है ना। टोटल तो फॉर श्योर 11 ही है,
ठीक है, ओके और नॉट? मैम हाँ जी, मैम एक बार आप बता दोगे इसमें हम लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? अच्छा मुझे मेरी कौन हेल्प करेगा फटाफट से? अच्छा ये बताओ, ये समझ आया या कोई एक और करके दिखाना है मुझे? जल्दी से बता दो ताकि मैं आगे प्रोसीड करूँ। हम सेकंड सिलेंडर का भी पूरा कर लेते हैं। सरेंडर करें, बीकर करूँ? बीकर कर चलो बीकर, ये बीकर है। अब ये उल्टा लगा हुआ है, उल्टा क्यों बेटा लगा हुआ है? अगर इसको नीचे आता ना, ये नीचे गिर जाता, स्लिप कर जाता, तो ऊपर वाले जॉस ना टिल्टेड है, उसने होल्ड कर लिया है बीकर को, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब मुझे बताओ मेन स्केल रीडिंग, जल्दी से बता दो मेन स्केल रीडिंग बताओ। 2.7 परफेक्ट। नाउ बताओ मेन वो आपका वर्नियर काउंट, वर्नियर की डिवीजन। मैम आपकी स्क्रीन तो फ्रीज हो रखी है। मेरी स्क्रीन फ्रीज हो रखी है वेट, अभी रुक जाओ, दोबारा से कर देती हूँ। अब ठीक है या नहीं? यस मैम। अब बताओ 2.7 तो हो गया फिक्स मेन स्केल। अब मुझे बताओ 3 0 1 2 3 बोला, लिखूं यहाँ पर? Yes. कितना कितना आंसर होना चाहिए मतलब? Yes, ma'am. 2.73। अब ये देखो, ये भी नाटक करेगा, ये भी नहीं हाथ लगाने देगा, ये लिखने नहीं दे रहा, ये निकले नहीं दे रहा। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो कितना आना चाहिए आपके आंसर? 0 आपके अकॉर्डिंग आंसर 2.73। ठीक है बेटा। मुझे लगता है ना मैंने अटेंड ही नहीं बनाया हुआ ना, तो ये ना कोई मस्ती कर रहा है कि मैं। हाँ जी बेटा, ये वर्नियर स्केल डायमेंशन 4 नहीं होना चाहिए था? लेट मी सी बेटा, एक मिनट रुकिए। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी मैं 11th क्लास को पढ़ाते समय सबको अटेंडी जरूर बना दूंगी। हाँ जी बताओ, डायमेंशन कौन सा होना चाहिए बेटा आपके अकॉर्डिंगली? 4 0 1 2 3 4। बेटा 3 और आपका जो 4th है वो नियर अबाउट सेम जैसे लग रहे हैं, है ना? 3 नहीं है ना? सो वो है ना, तो जो इसमें बेस्ट, जो मुझे लगता है जो बेस्ट है वो, बट मुझे बेस्ट तो 4th लग रहा है, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि बेस्ट 4th है ना? Yes, ma'am. बेटा इतना पॉइंट का डिफरेंस बेटा, तो वो मैनुअल एरर भी होते हैं, उतना चल जाता है, उतना इमोशनल नहीं होना। उतना पॉइंट का डिफरेंस जब आप तो ऑब्जर्व करवाएंगे मुझसे जब एग्जाम में, तो उतना पॉइंट का डिफरेंस तो मैं भी आपका वो थोड़ा सा मैनुअल एरर को भी टेकन केयर करूंगी। तो अगर वैसे नॉर्मल आंसर कितना आएगा? 2.74। अब ये ले रहा है, नहीं ले रहा है? नहीं ले रहा। Ma'am, हाँ जी ma'am, I did. Ma'am, it is 2.72. अच्छा 2.72, तो यहाँ पर ये भी है। मैम तो क्लियरली नॉन कोइंसाइडेंट है। मैम ये अजीब ही ले रहा है, हम जो है उससे पहले का ले रहे हैं। बेटा कोई बात नहीं, जब हम हाथ से करेंगे ना एक्चुअल लैब में, तो जो आएगा ना वो हाथ से आएगा, यहाँ पर इनके भरोसे नहीं रहेंगे। आपको बेटा सीखो फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो ऑनलाइन लैब्स होती हैं ये सब। हाँ जी डराओ मत, क्या हुआ? मैम इसका आंसर 2.73 या 2.74 होगा। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ बेटा, क्योंकि देखो जब ये जो जितने भी ऑनलाइन लैब होती है सिर्फ आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए होते हैं। इसमें ये इतने सिग्निफिकेंट थोड़ा ना होते हैं, इतने ज़्यादा प्रिसाइज थोड़ा ना होते हैं, इन्हें बहुत सारे एरर्स होंगे। तो इसलिए इन बातों पे ना चाह के कि ये एरर दिखा रहा है, हमें हमारा मकसद इस समय क्या है कि सीखना है, ठीक है? तो जो बेस्ट कोइंसाइडिंग होगा वो सही होगा ना, वो हमें फॉर श्योर नजर आ जाएगा। अभी ये अलग ले रहा है तो इसके मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? समझ आ गया ना कैसे करना है परफॉर्म? पक्का या नहीं? चलो, so beaker is done. So what you have to write on in your practical file? Tell me for the first group. What do you have to write on your practical file? What is the aim? Aim to measure the diameter of a Small spherical shell. ठीक है बेटा, ये तीनों आपको करने हैं एक ही प्रैक्टिकल के अंदर। ये तीनों करने हैं आपको एक प्रैक्टिकल के ऊपर, लिखेंगे वर्नियर कैलिपर करके, फिर ये तीनों करने हैं, बार बार प्रोसीजर को रिपीट नहीं करेंगे, और लेकिन टेबल डिफरेंट बनाएंगे। जैसे बेटा ये आपका प्रोसीजर लिखा हुआ है, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, डायग्राम बनाएंगे, प्रोसेस लिखा हुआ है। सो आपके पास एक ही टेबल बनेगी। एंड बेटा इन चैप्टर नंबर 2 व्हाट वी हैव लर्न इन फिजिक्स, मोर रीडिंग वी विल कैलकुलेट, मोर प्रिसाइज वी आर गोइंग टू हैव अ करेक्ट आंसर ना, मोर रीडिंग विल टेक। तो बेटा इट मीन्स जब भी आप बॉब का लेंगे तो आप 2-3 रीडिंग लेंगे, ठीक है, एक ही बॉब के लिए, ताकि आपका आंसर फिर बाद में कैसे निकालेंगे उस आंसर को,
मीन, एवरेज। ठीक है। सिमिलरली यू हैव टू डू, मैम हाँ जी बेटा, लेकिन ऑनलाइन में सेम वो सेम बॉब अगर नहीं मिलेगा, हाँ मुझे पता है बेटा, कैसे लेंगे? बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो होता है कि बॉब बदल दे। अगर बॉब बदल देंगे तो आप एक ही रखिएगा, लेकिन अगर बाय चांस बॉब सेम ही आ रहा है तो आप डिफरेंट रीडिंग ले लीजिएगा। अगर लेट्स सपोज बॉब बदल दे, क्योंकि बेटा वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर बॉब बदल दे तो आप हर किसी की एक ही रीडिंग ले लीजिएगा, ठीक है। इतना मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ कि आप सच ही लिखेंगे। फाइन, श्योर। Can you tell the starting part, the least count part again before we started with the table? अच्छा, लीस्ट काउंट कैसे निकालते थे फटाफट से बताओ, ये लिखा है यहाँ पर देखो, जल्दी से बताओ। वन लीस्ट काउंट फॉर्मूला इज, जल्दी से फास्ट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट? 1 MSD minus 1 MSD minus 1 VSD. Okay, 1 MSD minus 1 VSD. Now tell me how much MSD is equal to how much VSD? 9 MSD 9 to 10 MSD VSD. 10 VSD. ठीक है, 9 MSD is equal to 10 VSD. So how we have calculated the answer? So how we have calculated the answer? कैसे निकाला लीस्ट काउंट, फटाफट से बताओ जल्दी से। So 1 VSD is equal to how much MSD? 0.9 MSD. 0.9 MSD. So the least count is 1 MSD minus 0.9 MSD. कितना निकल के आया? 0.1 0.1 MSD. तो 0 और 1 MSD की वैल्यू कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कितना आंसर आ जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से सुने बच्चा, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में क्या हो रहा होगा जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे, उसमें क्या करते हैं बेटा, वर्नियर स्केल बना के दे देते हैं और कहते हैं कि लेट्स सपोज 24 MSD इज कोइंसाइडिंग विद 25 VSD। जैसे यहाँ पर 9 और 10 चल रहा है ना बच्चा, एग्जाम में ऐसे कहते हैं 24 VSD इज कोइंसाइडिंग विद 24 MSD इज कोइंसाइडिंग विद 25 VSD। तो आप लिस्ट काउंट निकाल दोगे, कोई दिक्कत है? कैसे निकालोगे लिस्ट काउंट, बताओ फटाफट से बता दो। इफ 24 MS 20, राइट डाउन एवरीवन, 24 MSD इज इक्वल टू 25 VSD लिखो, तो 1 VSD इज इक्वल टू 24 by 25. ओके 1.24. ठीक है, अभी ऐसे देखो, 24 by 25 MSD 1 VSD is equal to, so least count is equal to 1 MSD minus 24 by 25 MSD. Yes or no? 1 MSD minus 24 by 25 MSD. Yes or no? फास्ट हो गया? Yes ma'am. नहीं समझ आ रहा कुछ भी क्या? नहीं समझ आ रहा, जल्दी बताओ हाँ कि ना। नहीं मैम। नहीं मैम, समझ नहीं आ रहा या आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, तो एक आपने कॉपी में लिखा हुआ है, फटाफट से लिखो साहब, एक जल्दी 2 लाइन लिखनी है। 24 MSD इज इक्वल टू 25 VSD। अगर ऐसा दे रखा हो तो लीस्ट काउंट निकालने को बोलेंगे, जल्दी से करके दिखाओ मुझे कैसे निकालेंगे फटाफट से। तो अगर 24 MSD इज इक्वल टू 25 VSD है तो 1 VSD कितने के बराबर है? 25 MSD. तो लिखो 1 VSD इज इक्वल टू 24 by 25 MSD लिखो। लिख लिया? Yes ma'am. What is the formula of least count? लिखो formula of least count. 1 MSD minus मैम लीस्ट काउंट है 0.04. बेटा मैंने अपने आप बनाया, मुझे ऐसे याद नहीं आंसर, मैंने अपने आप से बना दिया, देख लेते हैं अब 0.04 ही आएगा शायद। 1 by 25 आ रहा है ना बेटा? Yes ma'am. Yes ma'am. तो 1 by 25 ही आ रहा है शायद। अब देखो सुनो, सो हमने क्या किया, 1 MSD minus 1 VSD मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला था। 1 VSD की जगह मैंने क्या पुट किया, 24 by 25 MSD। सो अब फॉर्मूला क्या निकल के आया, जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या निकल के आया? 1 by 25 MSD. 1 by 25 MSD आया ना बच्चा या नहीं आया? Yes. माइनस करके, तो 1 by 25 और MSD की वैल्यू बेटा क्या होती है? 1 MSD की वैल्यू 0.1 0.1
0.1 सेंटीमीटर. तो 0.1 upon 25 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ योर न्यू वर्नियर स्केल. अब कुछ भी दे रखा होगा तो मैं लीस्ट काउंट निकालना समझ आ गया. आई होप सो. ठीक है या नहीं? Yes, ma'am. चलो छुट्टी. बाय बाय. राइट डाउन योर फाइल. यू हैव 1 week to do. ठीक है. बाय बाय. And do practice also. Do practice also on your procedure also. Sorry. Do we? Ma'am, do we need to write the procedure Yeah, also? absolutely. You have to write down the procedure in your file, but not in the examination. Okay. So, and no need to write down the procedure for 3 different practicals of in a single head. Only one procedure is enough. ठीक है. एक ही बार लिखना procedure को. बार-बार करने की जरूरत नहीं है. टेबल 3 बना. टेबल डिफरेंट बनेंगे. बॉब का, इसका, सबका डिफरेंट टेबल बनेगा. लेकिन सबका प्रोसीजर एक ही रहेगा. ठीक है. Ma'am, the answer is 0.004. या यही होगा कैलकुलेट करके. Yes, ma'am. ठीक है. चलो. बाय बाय.